شروع عیسیٰ ابن مریم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، یہ وہی خالق ہے، یہ وہی مالک ہے جس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت آخری نبی دیے تاکہ ہم فلاح پا سکیں اور عافیت میں رہ سکیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ٹیم لاہور پوچھتا ہے کو دوسرا پروگرام ایک ایسے مقام سے کرنا پڑ رہا ہے جس کا انفارچونیٹلی اس حادثے کا، اس سانحے کا، اس واقعے کا دین اسلام کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں ہے۔ لیکن ہاں ضرور ہے اس کا تعلق، ضرور ہے اس کا رشتہ اور ضرور ہے اس کا ناتا، لیکن شرپسندی کے ساتھ، شرارت کے ساتھ اور خوف و ہراس کے ساتھ۔ یہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ چرچ کی بلڈنگ ہے، میں بھی اندر بھی جاؤں گا، آپ کو یہاں کے حالات دکھائیں گے۔ ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی جس میں عیسائیوں کے لیے دل کے انتہائی قریب مسیحی برادری کے لیے جو کراس ہے جس پر وہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اس کراس کو باقاعدہ اوپر سے توڑا گیا، اس کو نیچے پھینکا گیا، اس کی توہین کی گئی۔ اور یہ تمام تر واقعہ کلام مقدس قرآن کریم کے بے حرمتی کے بعد سٹارٹ ہوا۔ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ پہلے واقعے کے حوالے سے نہ دوسرے واقعے کے حوالے سے، کیونکہ اس میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نتیجتاً پوری دنیا کے سامنے لعن طعنان نہیں ہوئی۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کوئی علماء اس پروگرام کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست، بحیثیت نظام، بحیثیت اس مقدس ملک کے باسی، ہم سب لوگ اللہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چور ہو گئے ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں غیر مسلموں کی مہمان نوازی کی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس مساجد میں غیر مسلموں کو عبادت کا موقع فراہم کیا تھا۔ آج یہ تمام خرافات، شر اور تکلیف دکھانے سے پہلے میں دست بستہ درخواست کرنا چاہتا ہوں علماء سے کہ آج دل بڑا نہیں کرنے کی بات کر رہا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے جب تک یہ چرچز بحال نہیں ہو جاتے اس وقت تک مساجد میں ان کو ان کے عقائد کے مطابق مکمل طور پر عبادت کا حق دیا جائے، تاکہ جو چہرے پر کالک پوری دنیا اور اللہ کے سامنے ہم نے ملی ہے، ہم اس کالک کو کسی حد تک ضرور دھو سکیں۔ آج موقع ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو ناگوار گزرے، لیکن یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ آگے چل رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ سر پہلے تو معافی، داڑھی کو ہاتھ لگا کے، کہیں تو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، ترلا بھی، منت بھی، نہ تو یہ پاکستان ہے اور نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ شر ہے جسے ہم بھی لڑے ہیں، آپ بھی لڑے ہیں۔ سوال کوئی نہیں، جو بات آپ کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں۔ بڑے دکھ اور کرب کی بات ہے کہ ذاتی لڑائی کو مذہبی لڑائی کا رنگ دے دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ درندگی کی، فاقیت کی اور بربریت کی بدترین مثال ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے بھی اور قائد اعظم کے نظریات کے بھی منافی بھی ہے۔ اسلام سے تعلق نہیں، نہ اس کا پاکستان سے کچھ۔ یہی میں کہہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ جی کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آپ پیغام یہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں معاف نہ کیا جائے، انہیں عبرت ناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا جو ہے واقعہ رونما نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ بوجھ ہے ریاست پہ۔ سی ایم صاحب، محسن نقوی صاحب، مائنڈڈ، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دفن ہو جائے گا معاملہ، تو یقین رکھیے گا اگر اس کو دفن کرنا چاہا یا اس معاملے سے
नजर चुराने की कोशिश की गई तो यकीन करें फिर साथ ही अल्लाह को जो जवाब देना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ क्योंकि मेरा सोना रब ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ फैसले बड़े सीधे सीधे ने आज आपके पास ताकत है का मुतालबा भी है जी कि जो सीएम साहब जो है ना वो खुद यहाँ आए और मसीह बरादरी से मिले जो उनका जो जुल्म के मेट्रो बस घूम रहे थे आपको उनको इधर आना चाहिए ना जी आना चाहिए। और ये हमारा मुतालबा है अगर वो ना आए तो हम मुल्कगीर मुझे एहतजाज यहाँ कर पर रहे कोई हैं कैंप नजर नहीं आया जहाँ पर आपको ख्वातीन जो बेघर बैठी हैं उनके लिए वो तहफ़्फ़ुज़ दूसरे का से ये मामला क्योंकि हो। वो बादी दूसरी साइड पे ही चर्च है जी जी मैं वो- उधर भी हाँ। उनकी रिहाइश के लिए कोई कैंप नहीं लगाया जी, जी, गया होना चाहिए ना होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल रात होना गुजार चाहिए सकें। बिल्कुल होना चाहिए जी वो तो सारे सर, भाई आपसे भी माजरत और मैं हर अपने भाई से यहाँ पर माफी मांग रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान और मुसलमानों की तरफ से मांग रहा हूँ जो कहना चाहें हुक्म कीजिए। देखिए जी पूरे पाकिस्तान में नहीं बिलखसूस पूरी दुनिया में मसीही बरादरी जो है ना वो सरापा एहतजाज है। कल जो वाक़या हुआ है यहाँ पे जड़ांवाला में परसों बड़ा दिल खराश और दिल दिला देने वाला वाक़या है। देखिए इतनी इस तरह की मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में जिस तरह ये कल हुआ है। पहले तो कोई भी मसीही जो है वो ये सोच ही नहीं सकता कि कुरान मजीद की बेहुरमती करे या नबी पाक की गुस्ताही करे, ये हो ही नहीं सकता। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो गिरफ़्तार करें और उसकी शफाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर कैसरी शहजाद डॉक्टर है। साहब जिस तरीके से एक अच्छा मसीही नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, एक अच्छा मसीह कलाम पाक की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरीके से एक अच्छा मुसलमान किसी मसीही की इबादतगाह पर हमला नहीं कर सकता, बाइबल के हवाले से कोई घटिया बात नहीं कर सकता। याद रखिएगा एक बात मैं ऑन कैमरा ये बता रहा हूँ कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम पर ईमान के बगैर बहैसियत मेरा मुसलमान मेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता, क्योंकि हमें आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही ईमान लाता हूँ फरिश्तों पर, व कुतुबिही तमाम आसमानी किताबों में जिसमें बाइबल भी है, व रुसुलिही और तमाम रसूलों में जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे सर का ताज हैं। सो कोई मुसलमान ये नहीं कर सकता। हाँ शरपसंद जरूर कर सकते हैं, वो किसी भी तरफ से, और शरपसंद का कोई मजहब नहीं होता। जी बिल्कुल है। जज़ाकल्लाह। सर कोई हुक्म आप बिस्मिल्लाह करें। सर सबसे पहले तो आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि इस मामले को हाईलाइट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मसीहों के साथ, और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, क्योंकि ये मुल्क का अमन अमान ख़राब करने की नहायत घिनौनी साजिश है, ये जिसमें एक साजिश है और इसमें हर किस्म के हाथ हो सकते हैं। इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो इब्तदाई नुक्ता था वो किसके कहने पर और किस रजील इंसान के करने पर हुआ था। पॉइंट बी किस खबीस इंसान की खबासत पर हुआ। पॉइंट सी किस दरिंदे ने उसका इनिशिएटिव लिया। और अगर इन्वेस्टिगेशंस में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो यकीन मानिएगा ये अजाब दोबारा आएगा, ये अजाब हमें और आपको दोबारा घेरेगा। इस मझदार में हम लोग बर्बाद हो सकते हैं। मैं ये बात करना चाहता हूँ जी, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छी चीज़ें आपने शेयर की थ्रू सोशल मीडिया। जो पैगाम आपने दिया और जो लोगों को बताया है और जो लोगों के साथ आपने बात की है थ्रू सोशल मीडिया, मैं एक मसीही होते आपसे ये शिकवा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। शिकवा ये है कि जब तक ये हालात ऐसे रहेंगे, हम तो तारीख के उराक आप उलट कर देख लीजिए, पाकिस्तान के लिए जान दी है, शहीद हुए हैं, आज तक उसके परचम को ऊंचा किया दुनिया में। हमने पाकिस्तान के परचम को नीचे नहीं आने दिया, उसकी पहचान को नीचे नहीं आने दिया। लेकिन हमारा ये शिकवा है, कई हादसात गुजरे, कई इंसिडेंट हमारे साथ हुए, लेकिन हमारे साथ आज तक इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। और इस वाक़े के बाद भी देखिए, अभी तक गवर्नमेंट का कोई बड़ा अहकाम, कोई बड़ा नुमाइंदा,
कोई ऐसा सोर्स लोगों के लिए मुहैया नहीं किया गया। आप देखिए, जाकर पीछे जाकर बस्ती में देखें, लोगों के लड़कियों के जहेज जला दिए गए हैं, लूट मार की गई है, लोगों का सामान लूटा गया है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद की गई हैं। एक घर को बनाने के लिए जिंदगी लगती है और यहाँ पे 100 की तादाद के अंदर घरों को जलाया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, आला अहकाम से, कि जितने मसीही इस हादसे के अंदर शिकार हुए हैं उन्हें एक अच्छा घर दिया जाए, उनका सामान, उनके घर की चीजें वापस की जाए। फरमा रहे हैं जी, और ये रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर रियासत ये करने में नाकाम होती है तो इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बहुत बड़ी तकलीफ और अजियत का मामला हो गया, क्या प्लान है आगे? क्योंकि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका बहुत बड़ा तखमीन है, कोई इस पे कलेक्शंस की गई हैं, कैलकुलेशंस की गई हैं, आगे करने क्या जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये नुकसान जो है ये इसका एहसास पूरी कौम को है और इस पे बहुत प्रोएक्टिवली काम किया जा रहा है। कमेटी हमने परसों ही नोटिफाई कर दी थी जो कि असेसमेंट कर रही है। असेसमेंट आज इंशाल्लाह शाम तक हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवा देंगे और वहाँ से हमें पूरी तरह से अश्योर किया गया है कि इनकी हम कंपनसेशन को फ़ौरन अनाउंस करें और आकर उनको रिहेबिलिटेट करें। अभी इनके रहने का इंतज़ाम हो रहा है, इंशाल्लाह वहाँ इनको हम रिहाइश की अच्छी सहूलत दें और उनके खाने पीने का हर तरह से ख्याल रखें और इनको जो हमारे जो तमाम इबादत गाहें, चर्चेज जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है, आज से ही उसकी रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। मोर पावर टू यू, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। लेकिन मेरी एक हम्बल सबमिशन ये मैम कि 16 तारीख को ये वाक़या हुआ था, फजर की नमाज के बाद ये मामला चलना शुरू हो गया था। अब तकरीबन हम 18 तारीख की शाम होने जा रही है जब आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी तक बगैर घरों के हैं। दे डोंट हैव एनी प्लेस टू स्लीप। अपनी बेटियों के साथ अपने मामलात में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में। मेरे ख्याल से क्या हमें एज सून एज पॉसिबल आज रात तक उनके लिए कोई ठहरने का इंतजाम नहीं कर लेना चाहिए? मैंने आपसे पहले ही जी अर्ज किया कि इनका इंतजाम हो चुका है। अभी हम इनको सबको वहाँ पर लोगों को उधर का जी हम खुद उनको लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह बेफिक्र रहिएगा। बिल्कुल आप उनके लिए जी रहिए। सादा सा सवाल है, वो जगह कौन सी है ताकि हमें पता हो ना कि हम मैं कुछ वजूहात की बुनियाद पर ही अगर आपसे कह रही हूँ ना इस हवाले हम अपनी, मेरा ख्याल है जी स्टेट को इस चीज का एहसास है। आई एम रियली ऑनर्ड। वो कह रही हैं जी उनको एहसास है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 16 तारीख से लेकर 18 तारीख की शाम तक अभी भी मसीही बरादरी की बेटियां जो हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुले आसमान तले मौजूद हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सीएम साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, कि मोहसिन साहब, इट इज द थिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आपका कोई भी काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के चोर हो रहे हैं, आपका निजाम अल्लाह और उसके रसूल का चोर हो रहा है, खुदा के लिए सब चीजों को छोड़ें और पहले आकर जख्मी के जख्मों पर मरहम रखें। अभी तक वो मरहम, बड़ी तकलीफ से कह रहा हूं, मुझे उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। और मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये मेरे अकब में ये जली इमारत जो है, ये बहैसियत मुसलमान मेरे लिए बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। ये मस्जिद नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन बदकिस्मती की बात ये चर्च है। और चर्च इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उतना ही मुकद्दम है जितनी कोई भी मस्जिद। उसकी वजह यह है कि मेरे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा जाए तो बहुत वाज़ेह पता चलता है कि एक मुस्लिम रियासत में एक मुसलमान हाकिम के नीचे अगर माइनॉरिटीज टैक्स पे कर रही हैं तो भाई माइनॉरिटीज का और एक मुसलमान का खून एक बराबर है, उनकी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ एक बराबर है, कानूनी मामलात में, रियासती मामलात में वो एक बराबर हैं। मुसलमान इन द आइज ऑफ लॉ क्रिश्चियन से, हिंदुओं से, सिखों से या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले से एक कदम भी ऊपर नहीं है। ये पैमाना, ये तराजू मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन इस्लाम ने दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इस सबक को भूलते जा रहे हैं। अच्छी बात ये, एक ब्राइटर पहलू ये है कि यहाँ पर इस चर्च की रिहैबिलिटेशन के हवाले से काम शुरू हो गया है और यहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद। आपका नाम क्या है? फजल हुसैन। फजल हुसैन। मुसलमान है? मुसलमान है। आप भी मुसलमान हैं? आपका नाम क्या है?
आप मुसलमान हैं जी? माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? रशीद अहमद। रशीद अहमद साहब मुसलमान है ना? मुसलमान। आपका नाम क्या है? जाकिर अली। जाकिर। जाकिर भाई मुसलमान है? मुसलमान। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद काजिम जी। मोहम्मद काजिम साहब मुसलमान है जी। सो अ ब्राइटर थिंग इज कि यार उनको जितने जख्म आए हैं इसके बावजूद चलें बहरहाल इस चर्च और बाकी चर्चों की तामीर और मुरम्मत के काम के लिए मुस्लिम्स आर देयर। और मैं तो सीएम साहब को भी दरखास्त करता हूं कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता कि हम यहाँ प्रोग्राम करने आते तो यहाँ पर एक कैंप लगा होता सामने जिसमें सीएम पंजाब यानी पंजाब का राजा यानी मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी साहब बैठे होते और यहाँ पर इस चर्च की बुनियादी तामीरात के लिए वो खुद निगरानी का काम कर रहे होते और इस इलाके में मसाजिद को मुसलमानों के लिए क्रिश्चियंस के लिए खोला जाता ताकि वो अपनी इबादत के औकात में इबादत कर सकें क्योंकि उनकी इबादत गाहों पर शरपसंदों ने हमला करके बर्बादी आम की। अंदर चल रहे हैं जी, आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं, अंदर जा सकते हैं। अच्छा मुझे बताया गया ये ऊपर चर्च है, नीचे फैमिली रहती थी और ये वही चर्च है जिसके ऊपर क्रिश्चियंस के लिए मुकद्दस क्रॉस जो है उसको तोड़ा गया था और उसके बाद पूरे चर्च को नीचे घर को जला दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी पहले तो माफी, बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी तकलीफ, ये जो कुछ हुआ है ये जुल्म है। हाँ जी बहुत ज्यादा जुल्म किया है। ऐसे तो कलाम की कोई बेहुरमती नहीं करता जैसे उसने की है। देखे ये क्या किया, हम गरीब इधर इबादत करने आते हैं, अल्लाह की इबादत है, खुदा की इबादत है, अल्लाह तो एक है ना। कभी किसी ने सोचा है कि गरीब इधर इबादत करने आते हैं, 8 दिन बाद हम इधर इबादत करने आते हैं। और ये वाकया जब हुआ तो आप लोगों को किस टाइम पता चला कि कोई हमें बलवा वगैरह 10-11 बजे के बाद पता चला जब ये सारा चर्च वगैरह उन्होंने तबाह कर दिया। कितने लोग थे यहाँ पर जिन्होंने हमला किया था? ये पता नहीं, 400-500 लोग थे। तो आप लोग बच्चों को कहाँ लेकर गई? बच्ची तो बड़ी तकलीफ में है बेचारी, कहाँ लेकर गए? जहाँ पे हमारी रिहाइश है वहाँ पे नहीं ये लोग पहुँचे। अच्छा आप अल्लाह का शुक्र है बच गए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहन आप इसी इलाके में रहती हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं और यकीन माने ये आंसू बहैसियत मुसलमान हमारे लिए बहुत तकलीफ की चीज है, हमें माफ कीजिएगा। और मेरी दुआ है कि रियासत इतनी जिम्मेदार हो कि आपके हर दर्द का मदावा कर सकें। कोई सवाल नहीं है, जो हुक्म करना चाहें आप आजादी से बात कर सकती हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, बहैसियत मुसलमान मेरे घर पर खुदा ना खास्ता मेरी किसी इबादतगाह के हवाले से दुनिया में कहीं ऐसा कोई मामला होगा, मेरे हालात भी यही होंगे, आपके हालात भी यही होंगे, किसी भी इंसान के हालात ये होंगे। आपको क्या लगता है कि डेनमार्क में, स्वीडन में या दुनिया के किसी और खिते में ऐसा मामला हो या पाकिस्तान में हो तो उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है? दोनों एक जैसे हैं और हमें इसको, इस जख्म को अंडर द कारपेट करने की बजाय इसको हल करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, ये घर है, ये चर्च के नीचे मौजूद घर है। मुझे गुमान है कि ये किचन था, इट वॉज अ किचन, छोटा सा मुख्तसर सा किचन और बर्बाद हो गया। ये देखें आगे, अच्छा जालमो फर्श तक पड़ देता जे कोई शायद छड़ो। हाँ ये देखें जी, ये कमरा है और इसमें ये बेड जला हुआ है जी। ये बेड की मेरे ख्याल से एक छोटी लारी आदि बाकी रह गई है और कोई चीज, ये बेड था जी, ये बेडरूम कुछ बचा इस घर में? कुछ भी नहीं बचा सर, सब कुछ लेकर चले गए। यहाँ तक ये 100 कुर्सी थी, अच्छा वो भी नहीं, वो चर्च के लिए इस्तेमाल होती ऊपर होती है, वो भी ये क्या था? ये भी बेडरूम था। इन्ना लिल्लाह। ये वॉशरूम, वॉशरूम है। और आपको मैं चर्च भी दिखाता हूं। मैं ऊपर चलूंगा। मैं चाहूंगा कि हर पाकिस्तानी और खास तौर पर हमारे जिम्मेदार, हमारे हुक्मरान, यार मोहसिन नकवी साहब आपको तो यहाँ पर होना चाहिए था यार। देखें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, किस काम की इज्जत के वो किसी तकलीफ में किसी मजलूम के काम ना आ सके, दीन के काम ना आ सके, जालिम को रोकने के काम ना आ सके। अचार पाना है उस इज्जत दा, उसको उतार कर फेंक दे यार, आपके नहीं वो किसी के काम आ सकती तो। मौजूद हैं जड़ावाला के सबसे बड़े और मरकजी चर्च में, और यहां बदबख्ती ये हुई है
کہ یہ پورا چرچ جو ہے اس کو نظر آتش کیا گیا. اس کے نیچے ایک رہائش گاہ تھی, ایک گھر تھا, اس گھر میں بھی کچھ نہیں بچا, اس چرچ میں بھی کچھ نہیں بچا. اگر بچا ہے تو صرف اور صرف خواری بچی ہے, تو صرف اور صرف شرمندگی بچی ہے, تو ایک ایسی تاریخی بدبختی جو زخمی ہے, کالک زدہ ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا موقع دے کہ بحیثیت مسلمان ریاست ہم ان مائنورٹیز کے زخموں کو بھر سکیں, ہم ان کی تکالیف کو رفع کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں, کیونکہ ہم جواب نہیں دے سکتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مائنورٹیز جن کے لیے میرے نبی نے اللہ کے حکم پر ہمیں پراپر تعلیمات دی تھیں, we have lost everything. یہ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ چرچ, یہ دیکھیں, یہ ابھی تک یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے, اور بہرحال ایک ماری 100 ماری, ایک ظلم کیا 100 ظلم کیے, ظلم تو ہوا ہے. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, سمجھ رہے ہیں لوگوں سے. سر میرا نام آشر ہے, میں کرسچن ٹو اسپرٹ ریئلی معذرت چاہتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنایا ساتھ مل کر. ملک کا دل ہے. چیز اور ہے کہ ان کے پریکٹیکل ایشوز کے اندر ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو دہشت گرد ہے, جو ظالم ہے, جو دوسرے کا حق کھانے والا ہے, جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہے, اس کی ایک شناخت ہے کہ وہ ظالم ہے. نہ وہ مسلمان ہے, نہ کرسچن ہے, نہ ہندو ہے, نہ سکھ ہے, اس کی کوئی دوسری شناخت نہیں ہے. یہ جو تکلیف آج آپ اٹھا رہے ہیں وہ در حقیقت ہم بھی اتنی ہی اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو اسی لیے, میں نے آپ کو یہ داڑھی پہ ہاتھ لگانا ہے, میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں, گوڈے پھڑنے نے میں ان کے لیے بھی حاضر ہوں. خدا کی قسم میرے نبی نے, میرے دین نے یہ نہیں سکھایا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی آواز ہیں, اور اسی لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم کہیں اپنے رب کے حضور نہ پکڑے جائیں کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو ہم اپنے کان لپیٹ کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے میں یہاں سے وہ آیت تو نہیں آتی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے بہت سارے دوست مسلم ہیں جو مجھے یہ بتاتے تھے کہ آپ کے جو حق پڑوسی کا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جو واقعہ 5:30 بجے سامنے آیا اس کا بھی کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو واقعہ اس کے بعد ہوا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان دونوں افراد کا اور انہوں نے آڑ لی چوریوں کی اس واقعے کو بنا کے. اللہ کرے گا وہ بھگتیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو اور میری یہ درخواست ہے, میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چرچز مسلمانوں کو خود بنانے چاہیے, اور بار بار آج کے پروگرام میں یہ دستبستہ درخواست کر رہا ہوں علماء سے کہ میں جا کر اللہ کے حضور گواہی دوں گا انشاءاللہ. میں اللہ کو جا کے بتاؤں گا کہ میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک شہر جڑاوالا میں چرچز جلا دیے گئے تھے. میرے ملک کی مائنورٹی, میرے ملک کی کرسچن کمیونٹی کے پاس عبادت گاہ نہیں تھی, اور مسلمانوں نے اپنے نبی کے رستے پر عمل کرتے ہوئے مساجد کو نہیں کھولا تھا. میں جا کے بتاؤں گا, اس سے پہلے کہ میں اور باقی لوگ جا کے اپنے رب کو شکایت کریں. خدا کی قسم ان کے لیے, چونکہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا ہے, جل گئی ہیں, نظر آتش ہو گئی ہیں, ان کا حق ہے ایک مسلمان پر کہ آپ اپنی عبادت گاہوں کو کھولیں جہاں پر یہ اپنے اوقات میں عبادت کر سکیں, اور ان کو ایک برابر پاکستانی کا اور ایک اسلامی ریاست میں رہنے کا حق مل سکے. بہن آپ سے بھی معذرت, جو بات آپ کرنا چاہیں ہم حاضر. یہاں پہ تو اس دکھ کا عالم ہے کہ کوئی الفاظ جو ہیں وہ ساتھ بھی نہیں دے رہے. ہم لوگ کل سے یہاں پر ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ 22 چرچز کو نظر آتش کیا گیا ہے, اور یہاں پر 3 بڑی آبادیاں ہیں جو کرسچنز کی ہیں جن کو آگ لگائی گئی ہے. گھروں سے سامان لوٹ کر اتنی تسلی کے ساتھ ان لوگوں نے کتنے بے رحمی کے ساتھ اور کتنی جرت مندی کے ساتھ گھروں کو آگ لگائی ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک پیسفل سوسائٹی ہیں, ہم ایک پیسفل کمیونٹی ہیں. ملک پاکستان کے قیام سے لے کے ہم لوگ آج تک, آپ کا بہت بڑا کردار ہے,
हम मैं लोग बार बार कहता हूँ कि इस जिस्म का आप दिल है, ये धड़कना बंद हो जाएगा, ये जिस्म मुर्दा हो जाएगा। हम लोग बार बार हर रोज़, हर वक्त, हर लम्हा मुल्क पाकिस्तान की सलामती और इसमें बसने वालों की सलामती की दुआएं करते हैं और हम आइंदा भी करते रहेंगे। मेरा एक सवाल है, क्या मुझे और आपको, हमारे दोनों के ईमान का ये हिस्सा नहीं है कि वो रब जिसने हमें पैदा किया वो गलती नहीं कर सकता? बिल्कुल ये ईमान है हमारा। तो जिस रब ने मुझे और आपको इस वतन मुकद्दस में पैदा किया है तो इसका मतलब है उसने ठीक किया है। लेकिन एक सच वहाँ ये भी है कि मैं और आप, हम सब लोग अपनी और कुछ ऐसी गलतियां जो हमने नहीं की दूसरों ने की हैं उसका बोझ उठा रहे हैं। बटने की बजाय, टूटने के बजाय जुड़ने का वक्त है, ताकि हमारे और आपके दरमियान से कोई शरपसंद गुजर के शर ना फैला सके। ये मेरी एक हम्बल सबमिशन है, एक बड़ी दुखी दिल के साथ। लेकिन मैं आपके कैमरा और आपके चैनल के वसासत से ये कहना चाहूँगी कि हुकूमत और तमाम जो इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं, जुडिशरी इवन, वो आज के इस हादसे के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए जो कि नहायत ही तकलीफ दे थे, गोजरा में जिंदा लोगों को जला दिया गया, कोरिया में घरों को आग लगा दी गई, 147 घर जले जिनको हमने डोर टू डोर विजिट किया उस टाइम भी, और जो हालत थी लोगों की वो आपके सामने है। और मुश्किल से वो लोग रिकवर हुए थे कि आज ये एक बड़ा हादसा जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हादसा है ये पेश आया। जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमों को छोड़ दिया गया, उनको सजा नहीं दी गई, इसीलिए इस तरह के हादसा सामने आते हैं। माफी भी, माजरत भी, क्या वजह है कि एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या हो जाता है और बहरहाल कहीं ना कहीं हमसे कोताही तो हो जाती है। असल में मामला ये है कि जब भी कोई वाक़या होता है ना, बिहाइंड द कर्टन कोई ना कोई स्टोरी और होती है। कोई प्रॉपर्टीज का इशू होता है, कोई क्या कोई मतलब, किसी कोई ऐसा मामला भी था? जी ज़रूर, ऐसे मामला भी सामने आए हैं। क्या? किसी खातून का मामला होता है, जितने भी मामला होते हैं, कोई ज़ेश और बंदा कोई भी इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई बंदा भी ऐसा, मुसलमानों में भी नहीं कर सकता, कोई भी बंदा ऐसा नहीं कर सकता है जो जालिम है। जी जी जी। और एक और बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर प्रीवियस जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि जोसेफ कॉलोनी, आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ, एक बड़ा सानिया था। इसके अलावा और बहुत सारे जो जैसे बामना वाली है, कुरियाँ है और गोजरा है, इसी तौर से सांगला हिल है, ऐसे वाक़यात में जो लोग बिलावस थे अगर उनको पिनलाइज किया जाता, उनको सज़ा दी जाती, तो मैं समझता हूँ कि दोबारा ऐसे वाक़यात ना होते। बहैसियत लॉयर, क्या आप वाकई समझते हैं कि उन लोगों को सजाएं नहीं मिली थी? नहीं, उनके साथ रायत बरती गई है। उनके हुकूमत ने, चूँकि हुकूमत खुद मदई बन जाती है। अब इसमें देखिए, ये जो FIR लॉन्च हुई है उसमें स्टेट जो है वो खुद मदई है। अब स्टेट जब चाहेगी उनको रिलीज़ कर देगी। Is it really possible? Yes, of course, it is possible. It is always possible. अदम एतमाद है जी रियासती इदारों पर, और मैं इस अदम एतमाद के हवाले से ये कहूँगा कि भाइयों अपना एतमाद बहाल करें, अपना एतमाद बहाल करें। आपका एतमाद कमज़ोर हो रहा है, और अगर आप आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का, या किसी एक दो या एक दो से ज़ायद कम्युनिटीज़ का एतमाद खो देंगे तो फिर ये एक रास्ता निकल पड़ेगा जो ख़त्म होने नहीं आएगा। आपकी बात दोबारा कर, मैं कहता हूँ रियासत जो है वो माँ है, और माँ का काम होता है अपने हर बच्चे की हिफाजत करना। और अगर वो किसी एक, कभी ऐसा होता है कि कोई माँ एक बच्चे को तो प्यार करे और दूसरे के साथ नारवा सलूक करे, तो बड़ी बदबख्त माँ हो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और जिम्मेदारान ये जिम्मेदारी उठाएं। भाई पीछे गिर कोई ना जाए, ध्यान करें, अपनी जिम्मेदारी उठाएं। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं इस इशू से इसको सरफे नज़र कर लेता, लेकिन इसको सरफे नज़र करना मेरे लिए बिल्कुल ऐसे था कि मैं कोई ऐसा जुल्म कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, और जुल्म तो वाकई कोई भी नहीं करना चाहिए। यू कैन लुक एट दिस, ये क्रॉस है। इस क्रॉस की शनाख्त ये है कि ये क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए दिल के इतना ही करीब है जितना दिल का कोई बाल, और अगर इसको नुकसान पहुंचाया जाता है कि इस्लामी रियासत में, तो यकीन माने क्रिश्चियंस कम्युनिटी ही नहीं बल्कि मैं और आप भी अल्लाह के चोर बनते हैं, क्योंकि दे आर पेइंग द टैक्सेस। वो आपकी इस रियासत में कमनो अमान के साथ चल रहे हैं। एक वाकया हुआ कलाम मुकद्दस कुरान करीम के हवाले से
डीएसपी साहब जो हैं वो एक दिन पहले कोर्स पर चले जाते हैं और रिपोर्टेडली एसपी साहब जो हैं उनको मामला संभालने में ताखीर हो गई। जो मुतल्लिका और मकामी एसी साहब हैं, ही हिमसेल्फ वाज अ क्रिश्चियन, और वो यहाँ आते हैं, जो हमें यहाँ बताया गया उसके मुताबिक वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी को कहते हैं कि अपनी अपनी जान बचाओ। और अब ये कहानी चलाई जा रही है कि उन्होंने बंदे भगा दिए थे। खुदा की कसम, खुदा ना खास्ता अगर ये ख्वातीन, बच्चे, फैमिलीज घरों में रह जाते और उस वक्त ये जालिमों का जत्था हमला कर देता, जिसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना ही किसी और माइनॉरिटी से, इनकी शनाख्त सिर्फ एक है कि ये जालिम है। और जालिम का अंजाम, मैं ईमानदारी से कहूं कि जालिम के साथ रियायत जुल्म में शराकत है। मेरा दीन ये कहता है कि अगर रियासत जालिम के साथ रियायत करती है तो वो जुल्म में शामिल है, तो इनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई गैर सरकारी मुलाजिम हो, उम्र के किसी ताल्लुक से, किसी एज ग्रुप से उसका ताल्लुक हो, कानून के मुताबिक उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक और चर्च, प्रेस्बिटेरियन इसका नाम है, प्रेस्बिटेरियन चर्च। इस चर्च को भी नजर आतिश किया गया और यहाँ पर भी जो जुल्म करने वाले हैं, जालिम जो हैं, जिनका ना दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना ही क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक है, यहाँ पर भी नहीं आफियत हुई उन्हें। इधर आए जी, ये सामने क्रिश्चियंस ग्रेवयार्ड है, उनका कब्रिस्तान है क्रिश्चियंस का। उसके ऊपर अतराफ में दाखिली दरवाजे के साथ साथ पूरी दीवार को भी गिराया गया। यहाँ पर भी नहीं बात खत्म हुई। रिपोर्टेडली कब्रों के ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ था उसको भी उखेड़ कर फेंका गया। और मैं ये बात करते हुए इंतहाई तकलीफ से ये बात बता रहा हूँ कि ये क्रॉस हमारे मसीही भाइयों, हमारी क्रिश्चियंस कम्युनिटी के दिल के इतना ही करीब है जितना मेरे और आपके या किसी भी शख्स के दिल में वॉल्व हुआ करता है। यानी अगर वो वॉल्व बंद हो जाए तो मौत हो सकती है। और ये क्रिश्चियंस कम्युनिटी हमारे दिलों के इतने करीब है जैसे जिस्म के करीब उसका दिल होता है। यानी ये धड़कना रोकने पूरा जिस्म मफलूज हो सकता है और जान से जा सकते हैं। एक बदबख्ती है, बदकिस्मती है, जिसका आगाज कलाम मुकद्दस कुरान करीम की बेहुरमती के साथ साथ नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से, बदकिस्मती से स्टार्ट हुआ था। और उस वक्त अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल सेहत और ताकत के साथ पहले 3-4 घंटे में अपना काम कर लेते तो ये खराफात, ये जुल्म, ये बर्बरियत और पूरी दुनिया के सामने लानत मलामत नहीं होनी थी। अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं, इसको जरा बंद कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट कि इन काबिल फख्र पाकिस्तानियों से जरूर बात की जा सके जो इस वक्त तकलीफ में है, लेकिन मैं इनको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूं और इनको ये बताने के लिए आया हूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर ईमान के बगैर बहैसियत मुसलमान मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता। बाइबल पर ईमान के बगैर एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत तकलीफ है, शर्मिंदगी भी है और ये दाढ़ी को हाथ लगा के माफ़ी भी है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे के आप माफ़ कर सकें और इस कौम को पूरे वकार के साथ एक बार फिर से हम नए सफ़र का आगाज़ कर सकें। समझना ये चाहूँगा कि सवाल कोई नहीं मेरे पास, जो बात आप करना चाहें हम हाज़िर हैं। जी, सबसे पहले आप सबकी सलामती हो। और ये बड़ा एक हॉरिबल वाक़या है, लेकिन मैं कुछ बात शेयर करना चाहूँगा कि जब न्यूजीलैंड में एक मास्क के ऊपर सुसाइड ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो खुद डिफेंस के लिए आके खड़ी हो गई थी कि मैं देखती हूँ कि कौन यहाँ अब आके सुसाइड करता है। लेकिन शर्मिंदगी इस चीज़ की होती है कि गालिबन जो है 21 से 25 चर्चेस को यहाँ डिमोलिश किया गया है, जलाया गया है। लेकिन हमारी जो अदलिया या जो हमारे हुकाम आला है उनको इस चीज़ का, इंतज़ामिया को उस चीज़ का नहीं पता कि यहाँ कितने चर्चेस जलाए गए हैं। और हम न्यूज़ में देखें सिर्फ 4 से 6 चर्चेस का वो बता रहे हैं। सर, एक बात मैं बताऊं। जी जी। चर्च, मस्जिद, मंदिर एक जले या 100 जले, जी जी, ये एक बराबर है। पहली बात सुन ले मेरी बात। मस्जिद जले नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह चर्च जले, नाउजुबिल्लाह मंदिर
जले मुनहदिम हो शहीद हो, जी जी। ये सब का तकद्दुस एक इस्लामी और मुस्लिम रियासत में एक बराबर है। एक बराबर है, जो बिल्कुल। खून का तकद्दुस मुसलमान के का है वही आपके खून का तकद्दुस है। जी, ऐसा ना ही है। हमारा एक दर्जा ऊपर है ना आपका एक दर्जा नीचे है। तो ये सब चीजों में ना मुसलमान शामिल है ना क्रिश्चियंस, इसमें सिर्फ जालिम और जुल्म करने वाले जालिम शामिल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भैया आप सब अगर मैं पूछूंगा ना कि आप कौन हैं तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ आज इस वीडियो के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तरबियत भी करें। तरबियत नहीं है, ईमान है, कुरान की तालीम है, लेकिन तरबियत नहीं है। खुदारा अपनी कौम की, मुसलमानों की तरबियत करें, उनमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त करने का जो जज्बा है वो पैदा करें। किसी काम को इतनी जल्दी बगैर तफ्तीश किए, बगैर तहकीक किए बगैर, ठीक है ना, मजहब के नाम पर मजहबी दहशत गर्दी करना ये कोई अच्छी बात आपका नाम क्या है? मेरा नाम एल्डर नोएल नवाज है गुजरांवाला से। एल्डर साहब, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं आप तकलीफ में हैं तो मैं आपकी किसी बात को कन्फ्रंट नहीं करूंगा। मैं बहुत यहाँ तक मेरा ईमान है कि हम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन नहीं रखते। भैया मैं एक हाई स्कूल से गवर्नमेंट हाई स्कूल से एज ए हेड मास्टर मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने 80 साल तालीम से मेरा वास्ता है, स्कूलों से मेरा वास्ता है। मैं मानता हूँ कि आप हजरत ईसा को नबी माने बगैर आपका मजहब मुकम्मल नहीं होता, लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मजहब के नाम पर ये जो दहशतगर्दी है इसकी तरबियत करें अपनी कौम को, मुसलमानों को बताएं कि बगैर तहकीक के ये जो अभी देखे ना, अभी ये जो भी कुछ हुआ वो किस लेवल पे हुआ उसकी तहकीक अभी नहीं, वो दहशतगर्दी थी। सीएम साहब, मोहसिन नकवी साहब, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, एक सेकंड सर, पैरों थले मेहंदी लग जाए ना तो सुने पैर थले नहीं रखे जाते, पैरों के नीचे छाले लग जाएं तो सुना है कि पाँव जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर मौजूद दर्द तकलीफ शदीद है और आपको यहाँ होना चाहिए था। मैंने पहले ये बात की कि यहाँ एक कैंप लगाना चाहिए था, उसमें मोहसिन नकवी को खुद बैठे होना चाहिए था। इस इलाके के जो साबिका एमपीएस एमएनएस वोट लेने के लिए आप लोगों के दरवाजों पर टक 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 करते चले जाते हैं, आपको यहाँ पर आकर इन चर्चेस को दोबारा तैयार करना चाहिए था, यहाँ खुद आकर अपने हाथों से काम करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त ये जो सारे मैं इस चर्च की मतलब पादरी साहब की मिसेज हूँ, मैं खुद इस चर्च में खिदमत करती हूँ, ठीक है। और मैंने बात करनी है कि मतलब आई डोंट नो कि इन्होंने छुपे छुपे किसी से परमिशन नहीं ली। गवर्नमेंट जो है वो आए, कम से कम पादरी साहब से किसी से तो वो परमिशन लेना कि हम काम शुरू करने लगे। और हमें जो पता चला है कि वज़ीर आला आ रहे हैं, ये इस वजह से सफाइयाँ करवा रहे हैं। भाई क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, वज़ीर आज़म को भी तो पता चलना चाहिए ना यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह की सूरत हाल यहाँ पे हुई है। और मतलब हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक वज़ीर आला आके सब कुछ ये देख नहीं लेता तब तक हम सफाई नहीं होने देंगे, ठीक है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर ये बैड इम्पैक्ट जा रहा है कि हम इस तरह कर रहे हैं तो सॉरी टू से, हम इस तरह का कुछ नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी आए, ठीक है, हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म आए, जो भी आए वो खुद अपनी आंखों से देखे कि उन्होंने क्या हाल किया हुआ है। ये जो सरकारी नौकर होते हैं ना, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, इनके अपने कई चोंचले और प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, फलां साहब आ रहे, सब कुछ सीधा करो, फलां साहब आ रहे, एनू समेट लो, फलां साहब आ रहे, मुंह काला हो गया, वो मुंह ते पानी मारो, पता ना लगे मुंह काला आया सी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब कि अगर ये जो बात कर रही है सच है तो इसमें शर्मिंदगी है, महसूस करने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको जरूर महसूस करेंगे। और अगर ये वाकई ही एक टूर को सक्सेसफुल करने के लिए, मैं विजिट नहीं कह रहा, एक टूर कह रहा हूं, उसको सक्सेसफुल करने के लिए हो रहा है, तो ये वो कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला मामला, कि एक अजाब से जान छूटी थी, दूसरा अजाब आ गया। मैं बार बार ये कह रहा हूं मोहसिन नकवी साहब, 1 महीने के अंदर ये चर्चेज
मुकम्मल तौर पर तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, इन घरों को आबाद करना आपकी जिम्मेदारी है, इन घरों के अंदर जो सामान जला उसको पहुंचाना, वापस लाना सरकार के खजाने से आपकी जिम्मेदारी है। और उससे भी बढ़ के कल भी मैंने ये बात की, मैं आज भी ये बात कर रहा हूं कि मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के लिए मस्जिद खोली थी। आज जड़ावाला में इनके पास होली प्लेसेस और प्रेयर प्लेसेस नहीं है। तो आज अपने दिल पर हाथ रख के सोचें कि क्या आप और मैं ज्यादा मोतबर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्यों नहीं खोलते आप अपनी मसाजिद इनके लिए, जहां पर ये लोग इबादत कर सके और इनको इस चीज का इदराक और एहसास हो सके कि खुदा के बंदो हम वाकई पाकिस्तानी हैं और इनका जिस दीन के ये पैरोकार हैं वाकई ये उस दीन पर अमल भी करते हैं। मुझे अभी बताया गया तरबियत नहीं की गई, ये थप्पड़ था मेरे मुंह पर और मैं इसी तरीके से ट्रे में सजा के ये आगे आपको पास ऑन कर रहा हूं कि खुदा के बंदो, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर मेरी जान कुर्बान, वो मसाजिद और मस्जिद खोल सकते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो आप और मैं क्या हीरों के कालीन पर बैठकर आसमान से उतरें? नहीं, हमें दीन इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले उस पर अपनी जात के तहत अमल करना होगा। और उलमा इस पर बैठे यार, खुदा के बंदो हमने आपने जवाब देना है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, रोजे महशर मैं गवाही दूंगा कि इस्लामी रियासत में माइनॉरिटीज तकलीफ में थी और बहुत सारे लोग अपने कानों पर हाथ रख के बैठे थे, सरकारी नौकरों ने उनकी आंखों पर हाथ रखे हुए थे और बहुत सारे सरकारी नौकरों ने उनके मुंह पर हाथ रखे हुए थे कि कहीं सुन ना लें, कहीं देख ना लें और कहीं कुछ अच्छा बोल ना लें। कि हमारे लोगों को जो इनके इमोशंस हैं उनको सबसाइड किया जा रहा है और ये इसको क्लीन अप किया जा रहा है एकदम से। जो बर्न चीज़ें हैं वो उठाई जा रही हैं, तो मैंने आई स्टॉप देम, दिस इज़ नॉट द वे। तो ये है कि आप इंटरवीन कीजिए। उन्होंने कहा जी चर्च रिहेबिलिटेशन होगी और इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, वो होगी एक वक्त पे होगी, लेकिन अभी तक तो लोगों के इमोशंस हैं, वो उनको उन चीज़ों को देखने दें। आपको एक बात कहूं जी, तकलीफ बहुत पड़ती, लेकिन मैं आपको ये दाढ़ी को हाथ लगा के, काश मेरे सरकारी मुलाजिम ये कर लेते हैं कि आपकी दाढ़ी पकड़ लेते और आपके घुटनों को हाथ लगा लेते। थैंक यू। अमन का रास्ता, थैंक यू। अमन का रास्ता अपनाएं, क्योंकि मुझे इस बात का रासिख यकीन है कि क्रिश्चियनिटी भी अमन का दीन है, इस्लाम भी अमन का दीन है। असल में आप जैसे लोग जो है गलतियां हो सकती हैं, आप जैसे लोग हमारा हौसला बढ़ा देते हैं। जी, अल्लाह आपसे राज़ी हो। ये हम में से और आप में से जी, ये जितनी तकलीफ आपको है, आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, इस हादसे के बाद शायद आप लोग अल्लाह के चोर नहीं हुए। मेरा दीन ये कहता है कि हम अल्लाह के चोर हो गए, तो हमें इस लम्हे आपसे भी डरना है, हमें जुल्म के खिलाफ खड़े भी होना है और हमें अपने रब से भी डरना है। सो मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टेट के साथ ताबन। थैंक यू। जी हमने यही कहा, मौका दें। हमने उनको कहा कि वो अपनी ड्यूटी की करें, हमें अपने थोड़ी सी इजाजत दे दें इमोशंस की, कुछ कवरेज की, कुछ इस तरह। कवरेज हो रही है जी, सब कुछ हो रहा है और एक चीज नहीं, हमारी तो ये टीचिंग्स हैं। देखिए, हम तो अपने सताने वालों के लिए भी बरकत। पास्टर ओलिवर ज़िया, आई एम फ्रॉम क्वेटा। आई एम रियली ऑनर्ड। गले मिलेंगे? ओके जी, श्योर। जज़ाकल्लाह। ओके। एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं अपने उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ हैं और उन जी शऊर सब इस्लामी भाइयों का जो जी शऊर है और इस बात के लिए हमारे साथ है, हम इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। और सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि मान लिया है कि भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और वो चल रही हैं, करनी है। मेरे ख्वाहिश पता क्या जी कि ये चर्च क्रिश्चियंस कोई जितने चर्च चले हैं अपने हाथ से ना बनाने पड़े। ये तमाम चर्चेज मुसलमान खुद इसकी एक ईंट अपने हाथ से लगाएं। मेरी बात आपके बच्चों का, ख्वातीन का जो नुकसान हुआ, जो जहेज जले, वो रियासत एक चीज, एक दुपट्टे तक, एक नलकी तक, हर चीज खुद आपको पहुंचाए। एक्चुअली मैं सिर्फ यही कुछ बोलना चाह रहा हूँ, अगर मुझे अल्लाह आपसे इज्जत का मामला करे। आप देख सकते हैं जी चारों तरफ ये क्रॉस है जो कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी के दिल का तारा है और ये सब्ज हिलाली परचम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। आई मस्ट प्रेजेंट अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जब तक इस जड़ावाला के चर्चेज रिहैबिलिटेट नहीं किए जाते, इनके घर नहीं बनते, गवर्नमेंट की और यहां पर बसने वाले
مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم عبادت کے لیے بھی اور رہائش کے لیے بھی ہم وہ دروازے کھولیں جو عمومی طور پر متکفل ہوتے ہیں یا تالے لگے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کھولی تھی غیر مسلمانوں کی عبادت کے لیے, لیکن یہاں جو حالات ہیں یہاں پر کیوں نہیں کھل سکتی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم لوگ زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں اور معاملہ فہمی رکھتے ہیں؟ قطعی نہیں, بالکل بھی نہیں رکھتے. علماء اس پر بیٹھیں اور ایک آدھے دن میں اس کا کوئی رستہ نکالیں. اور گورنمنٹ, یار یہ بچیاں کہاں سوئیں گی جن کے گھر جل گئے ہیں؟ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں محسن نقوی صاحب, عمران ارشد کا یا آپ کا گھر جل جاتا ہے, آپ کو اور عمران ارشد کا کوئی واقف نہیں ہے جو اپنے گھر میں آپ کو اور مجھے رکھے گا. تو اس کنڈیشن میں اور آپ کیا کریں گے؟ میں اور آپ بہت کلیئرلی اس ریاست جس کو آپ ماں کہتے ہیں اس سے یہ توقع کریں گے کہ وہ ہمیں سر چھپانے کے لیے عارضی طور پر جگہ دے, اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا مکمل اس کے لیے عافیت کا کام کریں. سو یہ سادہ سی فرمائش ہے, سادہ سی خواہش ہے, اس کو کرنا کوئی احسان نہیں ہے, لیکن نہ کرنا بہت بڑی شرمندگی ہے. ناظرین, ایک اور چرچ کے سامنے موجود ہیں جہاں پر بدبختی عام کی گئی ہے, اور یہ بھی بدقسمتی کے ساتھ نظر آتش ہو گیا ہے جڑاوالا میں, اور متعدد چرچز ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ تکلیف کا ایک بہت ڈیفرنٹ سچویشن میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کرسچنز کے لیے. میرے ساتھ نیو ٹیلی ویژن کے نمائندہ جڑاوالا سجاد حسین قادری صاحب موجود ہیں, اور دوسری جانب حافظ عبدالہادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ لاہور رنگ کی معاملات کو جڑاوالا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ون آفٹر اندر میں یہاں سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی سر, یہ اتنی بڑی تکلیف, بدبختی, اذیت, کیا اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈر بھی تھا کہ 16 اگست کو آل آف دا سڈن یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی؟ ابھی تک تو جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ ایجنسیز کا خیال تو یہ ہے کہ یہ بھارتی ایجنسی را کی کارروائی ہے, اور انہوں نے ہی پلانٹ کر کے یہاں پہ کوئی یہ سارا سلسلہ کیا ہے. ایلیجلی 5:30 بجے بدھ کی صبح یہ سارا سلسلہ شروع ہوا کہ 2 کرسچن لڑکوں نے وہاں پہ یہ اوراق قرآن کریم کے اوراق اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. تو اس وہاں سے یہ مسلم نے اشتعال میں آ کر جو تھوڑا بہت سارا سلسلہ, لیکن یہ بہت تکلیف کی بات ہے, چیز ہے. وہ بھی قانون کو اپنا رستہ لینا تھا, کیا وجہ ہوئی قانون اپنا رستہ کیوں نہیں لے سکا؟ اس میں میرے دانش میں تو یہ ہے کہ یہ جو مقامی انتظامیہ نا ان کی نیگلیجنسی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس 5-6 گھنٹے ان کو ٹائم مل گیا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو وہ کور کرتے, اور وہاں پہ وہ چند اگر تحصیل کے ملازمین ہی پولیس کے وہ ڈپیوٹ کر دیتے تو معاملہ شاید یہاں تک نہ پہنچ سکے. ان کا خیال ہے کہ پولیس بر وقت ڈپیوٹ نہیں, اس کی حافظ صاحب بنیادی وجہ کیا تھی؟ سر میرے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے مجھے تو یہ انتظامی نیگلیجنس محسوس ہوتی ہے. انتظامیہ اگر موقع پر انتظامیہ موجود ہوتی, نفری موجود ہوتی, تو یقیناً یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہونے کے بہت کم چانسز تھے. کہاں تھے ایس ایچ او صاحب, کہاں تھے ڈی ایس پی صاحب؟ ڈی ایس پی صاحب تو کورس پر چلے گئے. ڈی ایس پی صاحب تو کورس پہ چلے گئے تھے ایک دن پہلے. ایس پی صاحب آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی معاملہ کو کنٹرول نہیں کر سکے. کیا مسئلہ تھا؟ ایس پی صاحب آئے ہیں تقریباً 9:30-10 کے قریب. تب تک یہ جو ہے معاملہ بہت ہائی لائٹ ہو چکا تھا اور عوام بہت زیادہ مشتعل ہو چکے تھے, اور انہیں ایک موب تھا جس کو کنٹرول کرنا تھوڑی نفری کے میں سمجھتا ہوں بس میں نہیں تھا. یا ہمیں تو کسی وقت یہ بھی لگتا ہے کہ شاید انتظامیہ کو پتہ نہیں ابھی کوئی آرڈر نہیں تھا. وہاں سے کیوں نہیں نفری بلائی جا سکتی؟ فیصلہ آباد تو میکسیمم یہاں سے ½ این آور کے آپ جڑاوالا کی مکمل نفری استعمال کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. سر جڑاوالا میں اگر باقی ہم تحصیل کے تھانوں کی باقی نفری آ جاتی تو میرا خیال ہے یہ میں اس کا عذاب اصل بتاؤں. عذاب یہ ہے ناظرین کہ ایک افسر کو کچھ کرنے کے لیے دوسرے افسر سے اجازت لینی ہوتی ہے, دوسرے کو تیسرے سے, اور تیسرے کو چوتھے سے. جب تک یہ چین چلتی ہے تب تک خرافات ہو چکی ہوتی ہے, اور اگر بیچ میں کوئی ایک آدھا افسر مس ہو جائے یا سویا رہ جائے تو پھر پاؤ بار ہے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے.